Good morning, student. I am here to teach you math. Okay. In this class, my dear students, we will learn about Roman numbers. Okay. This lecture is especially for class 4. Okay. From the nursery class, we already studied about the Hindu-Arabic words. My dear students, what do you mean by Hindu-Arabic words? Hindu-Arabic words. For example, Hindu-Arabic words. For example, from the nursery, when you start the pen or pencil or with pencil, okay, what your mothers or your teachers teach you? My dear students, your mother, your teacher teach you how to write 1, 2, 3, 4, 5 and so on. My dear students, these words are nothing but Hindu-Arabic words. Okay? In this class, we will learn how to represent this Hindu-Arabic word in the Roman language. Means, in this class, we will study how to represent Hindu-Arabic words into the Roman numbers. Means, how we can write 1 in Roman number, how we can write 2 in Roman number, how we can write 3 in Roman number, and so on. My dear students, there are some digits that are using Roman numbers, and that digits are, for example, I, V, X, okay, L, C, D, N. Means in Hindu-Arabic word, Hindu-Arabic words 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. These are the Hindu-Arabic words. Now we'll convert these words, these Hindu-Arabic words in the Roman numbers. And in Roman numbers, to represent Hindu-Arabic word, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, we are using these words. Okay? And these words have some specific meanings. For example, this represents 1 and this represent, he represent 5, X represent 10, L represent 50, C represent 100, D represent 500, M represent 1000. Okay? Using these words, we will represent all Hindu-Arabic words in the Roman numbers. Okay? Always remember that this for 1, V is for 5, X is for 10, L is for 50, C is for 100, D is for 500 and M is for 1000. Okay? You must remember this notation. If someone asks how we can represent 1000 in Roman language, what you say? 1000 is represented by M. Similarly, 500 is represented by D. 100 is represented by C. 50 is represented by L. 10 is represented by X. 5 is represented by V. And 1 is represented by I. These are notations. Using this notation and following certain rules, we will represent all the Hindu-Arabic words from the infinite in the forms of Roman numbers. Okay? You must remember it. Okay? Now we will learn some of the rules which we must follow while writing any Hindu-Arabic words
while writing any Hindu Arabic words into Roman language. What are the rules? The first rules. What are the first rules? The first rules, when certain Roman numbers are repeated the number represented by their sum. This is the first rule. What is it? When certain Roman number are repeated, the number represented by their sum. For example, 1 1. ठीक है? यहाँ क्या है? I रिपीट हो रहा है, मीन्स ये क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये एक I है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 को। फिर क्या हुआ? दूसरा I यहाँ पे बेटा रिपीट हुआ ना? एक I यहाँ पे है, दूसरा I यहाँ पे है, मीन्स क्या हुआ? रोमन नंबर रिपीट कर रहा है। और रूल क्या होता है? When certain Roman number are repeated, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो रोमन नंबर क्या रिपीट हो रहा है? The number represented by their sum. तो जो नंबर रिप्रेजेंट होगा क्या होगा? उसके सम के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। मतलब इस I का क्या होगा? 1 रोमन में I क्या डिनोट करता है? 1। फिर इस I क्या होगा? रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर होगा, ये नंबर कौन सा होगा? 1 plus 1 is equal to 2. Means if any number repeat, okay, in the Roman language, if any Roman number repeats, that gives us the result is given by their sums. For example, x. There are two Roman numbers that is denoted by x and x. These numbers is repeated, and what the rule says, when the number repeats, then the number represented by their sums. तो ये नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसके सम के द्वारा। एंड रोमन नंबर में x क्या डिनोट करता है बेटा? 10। एंड क्या दो बार x है, रिपीट कर रहा अपने आप को, तो क्या होगा? x क्या होगा? एक x क्या होगा? 10, दूसरा x क्या होगा? रिपीट का वो भी 10 होगा। तो रूल क्या बोलता है? जब कोई रोमन नंबर रिपीट करता हो, तो जो नंबर होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? उसके सम को। अब देखो दोनों को जोड़ दो, क्या होगा? 10 plus 10 20। मतलब ये क्या देगा आपको? 20। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई दो रोमन नंबर रिपीट करता हो, ठीक है, तो जो सम होगा उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रूल्स। ओके, तो पहला रूल याद रखना कि जब भी कोई रोमन नंबर अपने आप को रिपीट करेगा, तो वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वो नंबर उसके सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब दूसरा चीज देखो, इसी में क्या है? When certain Roman numbers are repeated, the number represented by their sums. इसी का एक रूल लिखो, ए करके, सब रूल करके। और वो सब रूल क्या होता है? कोई भी रोमन नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगा। ये रूल क्या करता है? रूल बोलता है नो रोमन नंबर are repeated consecutively
consecutively more than 3 times। देखो पहला चीज क्या बोला, रूल क्या बोला, when certain Roman number are repeated the number represent their sums। अगर कोई रोमन नंबर अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, तो जो सम होगा वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने देखा x x क्या है, रोमन नंबर अपने आप को क्या कर रहा है बेटा, रिपीट कर रहा है। जब कोई रोमन नंबर रिपीट करेगा जो सम होगा वो क्या होगा, उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब x क्या होता है, x डिनोट 10, ठीक है, क्या होगा 2x है, रिपीट कर रहा है, क्या होगा 10 प्लस 10 क्या होगा 20। अब इसमें क्या कर रहा है, रिपीटेशन होगा, अगर रिपीटेशन होता है तो जो उसका सम होगा वो नंबर को शो करेगा। लेकिन बेटा जो रिपीटेशन पे लिमिट लगा हुआ है, मतलब कितने बार आप रिपीट उस नंबर को, उस रोमन नंबर को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, आप कितने बार उस रोमन नंबर को रिपीट करते हो। क्या होता है, नो रोमन नंबर आर रिपीटेड consecutively more than 3 times। बेटा consecutively का मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली कोई भी रोमन नंबर लगातार कंटिन्यूअसली 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। मतलब अगर मानो ये x x x लिखते हैं, ठीक है, तो पहला रूल के अनुसार क्या होगा, when certain roman numbers are repeated the numbers represented by their sum, ठीक है, तो ये नंबर जो क्या रिपीट हो रहा है ना बेटा, रिपीट हो रहा है, जो इसका सम होगा क्या होगा, इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। अब देखो कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। रूल क्या बोलता है, नंबर आर रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूटिवली, x है x है x है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितना बार रिपीट हुआ 3 टाइम्स, मतलब रूल्स इज फॉलो, ये क्या होगा सही होगा। अब देखो x x x x, ये क्या है x x x x, नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रोमन नंबर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है बेटा, लेकिन ये रोमन नंबर कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4। क्या मैं फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए इसका सम क्या 40 लिखूंगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40? नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी रूल का एक दूसरा रूल क्या बोलता है, नो रोमन नंबर आर रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूटिवली मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी ऐसा रोमन नंबर लगातार 3 बार से अधिक अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। देखो x x x x है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बेटा ये नंबर कितना बार रिपीट कर गया 4 बार। लेकिन रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है बेटा कोई भी नंबर 3 बार से अधिक रिपीट, लगातार 3 बार से अधिक रूल रिपीट नहीं कर सकते। किसमें, रोमन नंबर के केस में। तो क्या ऐसा लिखना 40 को 4 बार x x लिखना, क्या ये सही होगा, नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग किसी भी रोमन नंबर को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार कंटीन्यूअसली रिपीट कर सकते हैं। चौथा बार करेंगे तो क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। 5वां बार भी नहीं कर सकते, 6ठा बार भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सुबह पूछे 60 को रोमन नंबर में कैसे लिखोगे, आप ये मत कर देना x x x x x x 1 2 3 4 5 6 बार x लिख देना, नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूल क्या बोलता है, नो नंबर आर रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूटिवली मोर देन 3 टाइम्स। मतलब क्या है, कोई भी नंबर 3 बार से अधिक अपने आप को क्या करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, ये रूल बोलता है, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो इसका दूसरा रूल क्या है, इसी में पार्ट बी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, इसको मिटा दो। इसमें देखो अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी कोई रोमन नंबर अपने आप को रिपीट करेगा तो वो नंबर जो उसका सम होगा उसी को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम एक नंबर लगातार कितने बार रिपीट हो सकता है, 3
तीन बार से ज्यादा हम लोग किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा रूल क्या बोलता है? ये क्या था, पहला का ही एक बीट पढ़ रहे हैं, ये दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल बोलता है BLD are not repeated। मतलब पहला बार क्या, 3 बार से अधिक आप रिपीट नहीं कर सकते हो, लगातार 3 बार से अधिक किसी एक रोमन नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। दूसरा नंबर क्या बोलता, VLD आर नॉट रिपीटेड। क्या बोलता बेटा, रोमन नंबर में अगर V हो, L हो, D हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट एक बार भी नहीं कर सकते, वो क्या होगा, एक ही बार यूज होगा। अब देखते हैं कैसे। अब देखो क्या है, ये किसको डिनोट किया था, 1 को, ठीक है, ये 5 को, X 10 को, C 50 को, ठीक है बेटा। C किसको डिनोट किया था, 50 को, सॉरी L किसको डिनोट किया था, 50 को, C किसको डिनोट किया था, 100 को, ठीक है बेटा। D किसको डिनोट किया था, 500 को, M किसको डिनोट किया था, 1000 को, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है, चलो बेटा आप रिपीट तो कर सकते हो लेकिन 3 बार से अधिक नहीं कर सकते। और क्या बोलता है, 3 बार से अधिक नहीं कर सकते हो, और क्या बोलता है, VLD को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, VLD को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये रूल बोल देता बेटा। अब जो रूल बोलेगा उसको तुमको पालन करना होगा ना। आप स्कूल आते हो, स्कूल में क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म पहन के आओ, तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, आते हो ना बेटा। हाँ, इसी तरह क्या है, ये भी क्या रोमन नंबर क्या बोलता है कि हमको तुम यूज कर सकते हो लेकिन जब तुम हमको यूज करोगे क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नियम को पालन करना होगा। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, एंड व्हाट आर दैट रूल्स बेटा? द फर्स्ट रूल्स, if the Roman number repeats, then the sum of that number represent that number। अगर कोई रोमन नंबर रिपीट करता है उसका सम क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। और उसी का पार्ट ए क्या बोलता है, 3 बार से अधिक किसी रोमन नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। अगर तुम 3 बार से अधिक रिपीट करोगे तो हम क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम इस रूल को नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, हमें रूल को फॉलो करना होगा। अगर रूल को नहीं फॉलो करेंगे क्या होगा, रोमन नंबर नाराज हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए इस रूल को फॉलो करना, ठीक है। और क्या बोलता है, VLD आर नॉट रिपीटेड। VLD क्या होगा, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो V बेटा, ये देखो V किसको डिनोट करता है, 5 को। V किसको डिनोट करता है बेटा, 5 को। L बेटा किसको डिनोट करता है, 50 को। L किसको डिनोट करता है, 50 को, ठीक है बेटा। और D किसको डिनोट करता है, 500 को। बेटा D किसको डिनोट करता है, 500 को। और क्या बोला गया, VLD आर नॉट रिपीटेड। क्या बोला गया, VLD आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग सपोज करो अगर आपको मैंने बोल दिया कि बेटा 100 को क्या करो, रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्या करो, 100 को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करो। आप क्या बोलोगे, सर ये तो क्या है, बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे LL, ठीक है। क्या कर दोगे, LL लिख दोगे ना बेटा। क्यों, तुम बोलोगे अगर एक L 50 है तो दूसरा L क्या होगा, 50 होगा। और पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर कोई रोमन नंबर रिपीट कर रहा है तो उस नंबर का जो सम होगा वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोलोगे, सर आपने तो मुझे ये पढ़ाया कि रोमन नंबर रिपीट हो सकता है और जो उसका सम होगा वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर एक L 50 है तो दूसरा L भी 50 होगा और दोनों का सम क्या होगा, 100। मतलब क्या, इस रोमन नंबर को 100 रिप्रेजेंट करना चाहिए ना बेटा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बेटा, क्योंकि ये रूल ही बोलता है, क्या बोलता है रूल, VLD आर नॉट रिपीटेड। मतलब
2 बार 3 बार 4 बार एल को कंटिन्यूअसली नहीं लिख सकते हो। एल वी हो, एल हो, डी हो, इसको आप एक ही बार लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया? अगर आपको एक से 10 लिखना है, आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, क्या करोगे? 2 बार 5 5 लिख दो, वी लिख दो। अब क्या बोलोगे? एक ये 5 है, एक ये 5 है, और दोनों का सम इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये सही हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों? ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत होगा? क्योंकि रूल क्या बोलता है बेटा? वी एंड डी आर नॉट रिपीटेड। क्या बोलता है रूल? वी एंड डी आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? 3 रूल को सीखा। कौन सा रूल? फर्स्ट रूल क्या होता है? अगर आप रोमन नंबर को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, और जब आप रिपीट करोगे तो उस नंबर को, उस रोमन नंबर को जो उसका सम होगा वही उसको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या करेगा? चलो भाई तुम रिपीट तो कर सकते हो, लेकिन तुम अपने मन से जितना टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हो बेटा। कितना बार रिपीट कर सकते हो? मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। रूल्स क्या होता है? यू कैन रिपीट any Roman number maximum 3 times. You cannot repeat any Roman number maximum 3 times, ठीक है। 3 टाइम से ज्यादा आप किसी भी रोमन नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हो। उसमें भी चलो रिपीट हो गया। अब वी एल डी क्या बेटा? बोलो जोर से बोलो बेटा, क्या? वी एल डी, वी एल डी क्या बोलता? नहीं, मैं अकेला रहूंगा, मैं रिपीट होने वाला नहीं हूं बेटा, ठीक है। तो क्या तुम वी एल डी को रिपीट करोगे? नहीं करोगे, इसलिए 100 को डबल एल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी एल डी क्या बोलता है? मैं रिपीट नहीं होऊंगा, मैं अकेला होऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना एक चीज और रखना, जिसका प्लेस जो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, जिसमें क्या हो? 5 लिखा हो, वी 5 है, एल 5 है, 5 के आगे 0 लिखा हुआ, डी 5 के आगे 0 लिखा, मतलब क्या हुआ? जिस नंबर में 5 लिखा हो, ठीक है, क्या चीज? 5, 50 एंड 500 वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? तो ये 3 रूल को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे क्या पढ़ना है? आगे रूल क्या पढ़ना है? आगे रूल को देखते हैं। देखो बेटा, अगला रूल क्या है? जब हम लोग क्या करें, जब हम लोग क्या करें बेटा, किसी भी, ठीक है, किसी भी रोमन नंबर के आगे में, ठीक है, किसी भी रोमन नंबर के आगे में उससे छोटा रोमन नंबर अगर लगाते हैं, वो दोनों क्या होता है? ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी है और ये क्या है? आई, ठीक है। ये क्या होगा? वी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? 5। अब देखो 5 और आई क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, ठीक है, करता है ना। देखो जब तुम आगे लाओगे ना, हमेशा इससे क्या? छोटा ही आएगा। इससे आगे जो भी नंबर आएगा, जो भी रोमन नंबर आएगा, इससे लेस देन आएगा। ऐसा नहीं लिख सकते हैं v और x, इसका सेंस कुछ और हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको याद रखना। इसमें क्या होगा? इधर क्या होगा? ग्रेटर, इधर क्या होगा? स्मॉलर, ठीक है, ठीक है। यहां पे जब ग्रेटर के आगे स्मॉलर हो तो क्या करेंगे? दोनों ऐड हो जाएगा। पहले ग्रेटर हो फिर स्मॉलर हो, दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्या होगा बेटा? दोनों ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? v 5 है, ये क्या? 1, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। समझ में आया? अब इस रूल को लिख लेते हैं। ये रूल क्या बोलता है? लिख लीजिए बेटा, आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट होगा आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। क्या बोलता है दूसरा रूल? when, क्या बोलता है? when a रोमन का स्पेलिंग गलत हो गया। when a रोमन number is placed after
greater value, the value of the resulting number is equal to the sum of the number। ठीक है बेटा, अब देख लो कैसे। 5 हो गया, देखो पहला रूल क्या बोलता, किसी नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। क्या हुआ, रिपीट हुआ रोमन नंबर, कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हुआ, हाँ बेटा हुआ, चलो ठीक है। मैक्सिमम कितना बार रिपीट कर सकते हो बेटा, 3 बार। 3 बार से अधिक रिपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3, चलो सही है, इस रूल को सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या बोला था, वी एंड डी, क्या वी एंड डी को रिपीट कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते। ये किसी में कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है बेटा। चलो वी कितना बार आया है, एक बार आया, मतलब क्या, प्रीवियस तीनों रूल को फॉलो कर दिया, मतलब क्या है, ये सही है, करेक्ट है, क्या ये सही है। अब देखो बेटा, ये रूल क्या बोलता है, व्हेन ए रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी रोमन नंबर प्लेस किया जाए, ठीक है, किसके, इसके बाद, किसी भी ग्रेटर वैल्यू के बाद, ठीक है। अब यहां पे देखो ये क्या है बेटा, ये क्या डिनोट करता है, 1, कितने टाइम्स 1 डिनोट किया है, 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये क्या डिनोट करता है, v क्या डिनोट करता है 5, ठीक है, तो 5 क्या है, 1 से, इससे क्या है, 3 से क्या है, ग्रेटर है। ये जो रिपीट हुआ इससे क्या ग्रेटर है, 5 है ना। रूल क्या होता है, व्हेन ए रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अदर ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। क्या बोला, अगर किसी ग्रेटर नंबर के बाद कोई नंबर, कोई रोमन नंबर जिसका वैल्यू क्या हो, अपने प्रीवियस वैल्यू से कम हो, अगर ये सिचुएशन अराइज होता है, तो जो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के सम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, दोनों को सम को। अब देखो यहां पे ये क्या है, 1 1 1 1 है ना, ये क्या v एंड v क्या होता है 5, v 5 को डिनोट करता है, 5 बड़ा है किससे, 1 से, है ना बेटा, 5 बड़ा है किससे, 1 से, है ना। तो रूल क्या बोलता है, अगर कोई बड़ा संख्या, ठीक है, अगर किसी बड़ा संख्या के बाद उससे कम वाली कोई संख्या आ जाए, ठीक है, तो उसका जो सम होगा वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। v क्या है 5, ये क्या होगा बेटा, यहां पे देखो 3 1 1 1, तीनों को जोड़ दो क्या होगा 3, मतलब क्या, दोनों का जो एडिशन होगा क्या होगा 8, वही इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया, वही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे xi, ठीक है। अब देखो ये क्या i क्या था 1, ये क्या है x बड़ा होता है कि 1, x बड़ा है i, बेटा x बड़ा है, क्यों, क्योंकि x किसको डिनोट करता है, 10 को, i किसको डिनोट करता है 1 को, ठीक है। रूल क्या बोलता है, व्हेन ए रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर द